let's start with the second chapter of the sequence. So, मैंने decide किया, yes, we done with atomic structure and mass spectroscopy in the last class. आज plan ये है कि chemical bonding and with the bonding states of matter को थोड़ा सा cover up करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So let's start with the chemical bonding. As I said कि इन सेशंस का मकसद सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देना है. You probably knew all this system before, but I'm just giving you a reminder कि किन एरियाज पे आपको emphasize करना है और किन चीजों को आपने भूलना नहीं है, ठीक है? So yes, start with the chemical bonding. They do ask about the definition of a chemical bond. So you should know that this is basically the force of attraction present between the particles, ठीक है? Or present between the atoms. Clear? So this is basically a force of attraction. Bonding is basically the force of attraction, ठीक है? और ये जो force of attraction होती है, it could be intramolecular or intramolecular. आपको पता होना चाहिए इंट्रामोलिकुलर मींस प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल. यानी अब तक जो भी आप बॉन्डिंग पढ़कर आए फ्रॉम योर ओ लेवल्स एंड इन एनएएस, आपने 4 टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, व्हिच इज आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग. इसको डेटिव बॉन्डिंग भी कहते हैं. और इट कुड बी अ इंटरमोलिकुलर फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है? एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ी है व्हिच इज बेसिकली द वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बेसिकली डिस्पर्शन फोर्सेस इज द मोस्ट प्रिसाइज टर्म. आगे हम इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? And then the concept of ionic bonding, you should know the definition of ionic bonding. So it is an electrostatic force of attraction present between positive and negative charge ion. ठीक है? O levels वाला concept है. Nothing more than O levels. इसमें कुछ भी O levels से ज्यादा नहीं है. Mostly they ask in a MCQ which of these molecule have a ionic bonding. तो आपको पिक करना पड़ेगा कि कौन से molecules में bond between metal and non-metal. So mostly ionic bonding is between metal and non-metal. But as I gave you one example, ammonium chloride, this is the example in which you have a ionic bonding present between between a non-metal positive ion which is NH4 positive. ठीक है? The NH4 positive is one of the few non-metal cation. ठीक है? Dot and cross बनानी आनी चाहिए, and while you draw the dot and cross, make sure कि you draw all the outermost electron. जैसे Mg2 plus है, ठीक है? तो Mg2 plus में normally magnesium के outermost shell में you have 2 electron. ऐसे ही है ना? तो after removing 2 electron, मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल हो जाता है कंप्लीट. अब जो उसका इनर शेल है, जो सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, नाउ इट बिकम आउटर मोस्ट शेल. सो Mg2 प्लस के आउटर मोस्ट शेल में यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है ना? यानी मैं अगर आपको बिल्कुल ओ लेवल्स वाले स्टाइल में समझाऊं तो बेसिकली मैग्नीशियम आपके पास होता है बेटा 2,8,2, ठीक है? And Mg2 plus is 2,8. So in case of magnesium, the outermost shell have how many electrons? 2 electrons. But in case of magnesium 2 plus, the outermost shell have 8. Most common error क्या करते हैं बच्चे? Mg प्लस की डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं, वो कहता है शो ऑल दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और Mg2 प्लस के आउटरमोस्ट शेल को वो एम्प्टी रख लेते हैं. एम्प्टी नहीं होगा, देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in the outermost shell of Mg2 plus. ठीक है? Clear? And same applies for oxide O2 minus. And then you should know about properties of ionic compound. O level से भी जानते हैं कि they are solid with high melting point and boiling point. अब रीजन ये होगा कि why high melting point? Because of a strong electrostatic force of attraction present between positive and negative ions. ठीक है? बात समझ आ रही है क्यों ये वो होते हैं? क्योंकि इनके दरमियान strong force of attraction होती है between positive and negative ion, and that's the same reason why they have ठीक है? And why they have a high melting point and boiling point as well. Clear beta? Now they have a crystalline lattice structure. All ionic compound are soluble in water. They are good conductor. Molten and aqueous form. ये सारा O levels का concept आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस concept को, ठीक है? तो ये आगे चलते हैं. मेटालिक बॉन्डिंग बहुत
ये मैंने शुरू में ओ लेवल कॉन्सेप्ट सारे मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए कि दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन the positively charged metal ion and a sea of delocalized electrons. ठीक है बेटा. So और ड्रॉ करना आना चाहिए, आसान सा है. Properties of metallic bonding. They are solid with high melting point. They conduct electricity, malleable and ductile because they have a layer type structure and these layer can slide over one another. I hope you remember from O levels. आगे चलते हैं, covalent bonding की तरफ आते हैं. ठीक है. So the covalent bonding is basically is also an electrostatic force of attraction present between the nuclei of two atoms and the bonded pair of electron. ये जो right side पे diagram है बेटा, इस diagram में मैंने explain करने की कोशिश की है कि how many attractive and repulsive forces you have present between the nuclei of two atoms and electron. देखो ये positively charged are basically the nucleus of two atoms. So these nucleus and these shared pair of electron are repelling each other. तो ये जो red से represent किया, these are the repulsive forces. Attractive forces क्या हैं कि the positively charged nuclei of one atom attracting both the bonded pair of electron. In a similar way, the positively charged nuclei of the other atom attracting both the bonded pair of electrons. So you have repulsive forces and attractive forces. एक दफा एक एग्जाम में उन्होंने आपसे पूछा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितनी भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जस्ट एक्सप्लेन ऑल दीज, और आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए. ठीक है. Mostly between metals and non-metal, but there's an example of an chlorides of aluminum in which you have a covalent bond present between a metal and a non-metal. वैसे mostly between metal and non-metal होता है. Types of covalent bond, single, double and triple covalent bond आसान है, इसलिए आगे skip करते हैं quickly. Now the concept of central atom, the bond pair and the lone pair of electron. पहली बात याद रखिएगा, जो shared pair of electrons होते हैं, the electron pair जो आपस में share होते हैं, these pairs of electron are called the bonded pair of electron or the shared pair of electrons. ठीक है, clear? The outermost electron of any atom present in the same outermost shell, but they are not participating in a bonding, are called the lone pair of electron. और central atom के लिए दो condition याद रखिएगा. The atom which is less in number is always a central atom. जैसे NH3 में एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम. लेकिन अगर दोनों 1-1 है, जैसे HCl का केस है, ठीक है, सो द वन दैट हैव मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट is going to be the central atom. जैसे HCl के केस में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दोनों का अमाउंट, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसमें आइडेंटिफाई क्या करते हैं? The one that have more lone pairs of electron is going to be the central atom. H2O में ऑक्सीजन, NH3 में नाइट्रोजन, CH4 में कार्बन, SO2 में सल्फर. और अगर दोनों में लोन पेयर भी बराबर हो तो फिर आप जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी एक को भी सेंट्रल एटम कंसिडर कर लें. ठीक है. तो H2O के केस में कुछ चीजें आपको आंसर करनी आनी चाहिए. सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन जो है इसके बाद 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं. ठीक है ना, क्लियर? अब लोन पेयर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद आ गई. अमोनिया के केस में नाइट्रोजन हैव 1 lone pair of electron and 3 bond pair of electron. CH4 have 4 bond pair and no lone pair. HCl के केस में, as you remember, right bottom पे HCl के केस में क्लोरीन ग्रुप 7 का है, it has 7 electron in the outermost shell. प्लीज डॉट एंड क्रॉस सही बना दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सिंपल से मॉलिक्यूल्स की. ठीक है. So it has 3 lone pair of electron and 1 bond pair of electron with hydrogen. ठीक है. फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. ठीक है. यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बेटा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से एक दफा और सुन लीजिए. बेसिकली electronegativity values are normally given in a periodic table. Now electronegativity is the power of an atom to attract a electron, or if you're talking about the covalent bonding, may electronegativity the power of an attract a pair of electron, bonded pair of electron. ठीक है. दोनों definitions valid हैं. You can write any of these definitions. यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड बना तो कितनी पावर के साथ ऑक्सीजन उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी पावर के साथ हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. दिस पावर इज
basically called the electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनेगा तो मैं काफी पॉजिटिव हूं कि दे गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंटर बनाते रहिएगा जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इस टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, मैं बाद में कोई गेस्ट पेपर कुछ नहीं होता, व्हाइल आई एम गोइंग थ्रू दिस टॉपिक तो मेरे ध्यान में जो चीजें आती हैं मैं आपको बताता हूँ कि दैट्स गोइंग टू बी important and they could ask this one in an exam. So you should have a page or a piece of paper in which you can writing okay I have to emphasize this one. Although आपको याद भी है अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी आप एक दफा जरूर इसको दोबारा से देख के जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना, तो इफ यू हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी प्रोटॉन नंबर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। न्यूक्लियर डिस्टेंस जितना कम होगा, यानी द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। जितना करीब होगा, जितना छोटा एटम होगा और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द न्यूक्लियर डिस्टेंस इनवर्सली। अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की कॉन्सेप्ट को हटा दूं, ठीक है, if I eliminate the concept of a shielding effect, you can see the trend is like the dependency or the factors on which the electronegativity depends is exactly the same factors on which the ionization energy depends, ठीक है। तो ionization energy और electronegativity के फैक्टर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम, ठीक है ना, क्लियर। सो ट्रेंड भी बिल्कुल सेम है, बट ट्रेंड में सिर्फ ये बात है कि डायगोनली सेम रहती है। कभी कभी ये बात पूछ ली जाती है, डायगोनली का मतलब अगर इफ यू गोइंग अक्रॉस downward towards the right side, that is going to be the same. So electronegativity left to right increase होती है, same as ionization energy, down the group decrease होती है। रीजन पूछेगा आप रीजन वही बताएंगे। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर डिस्टेंस remain nearly same but the nuclear charge increases. Left to right, nuclear distance remains nearly same as the electron is present in the same outermost shell, but the nuclear charge increases, due to which electronegativity value increases. Down the group, nuclear distance increases as the electron is present in a different outermost shell or new shells are added, so which cancel out the increase in nuclear charge, ठीक है, जिसकी वजह से electronegativity decrease होती है। Left to right, न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहता है, नियरली सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए शेल ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको याद होने चाहिए। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विद द क्वेश्चन, अगर वो उसमें वो वैल्यूज आपको यूज करनी होंगी तो वो वैल्यूज आपके पास नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गिवन होंगी, ठीक है, क्लियर। और मैं भी इसमें आगे चाहूंगा, ये थोड़ा सा ये पिक्चर जो है कुछ मुझे तंग कर रही है, तो लेट्स मूव दिस पिक्चर डाउन। पता नहीं कहाँ रखी थी मैंने, जो यहाँ पर आ गई है, इस पे प्रोवाइड। Okay, so let's do it. तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो यस, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms in which there is no difference or a little difference. अब नो डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे नॉन पोलर होते हैं। एंड एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये तो सारी बातें समझ में आ गई। लिटिल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ मैंने आपको दिया है कि 0 से ऑलमोस्ट 0.4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जनाब। And if the difference between the negativity value is from 0.5 to 1.2, so it's a polar covalent bond. 1.3 से greater है तो ionic bonding होगा, ठीक है। यानी if there is a large difference in electronegativity value, then it's going to be a ionic bond, ठीक है, clear। So this is basically
द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन करना है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई एक डिफरेंट बॉन्ड दिया है, यानी आपसे बोला है कि हाइड्रो आयोडीन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, देन यू मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, जो टेबल में अभी यहाँ पर था। आप उस टेबल से वैल्यूज को माइनस कीजिएगा। अगर डिफरेंस 0.5 से ज्यादा 0.5 या उससे ज्यादा का आ रहा है तो आप बोलिएगा पोलर, उससे कम आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3, इवन 0.4 तक आप नॉन पोलर कोट करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, सो द वन दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द one that is more electronegative is going to be a partial negative, other one partial positive। याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन आसान है। a covalent bond formed by the unequal sharing of electron, ठीक है, between two atoms in which there is a little or no difference of in which there is a significant difference of electronegativity present। अभी significant difference कितना है बेटा? ये 0.5 से 1.2 तक का है। ठीक है, क्लियर। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कॉमन एग्जांपल याद होने चाहिए बेटा। द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर डिफरेंस 1.5 से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो वो बॉन्ड जो है वो आयनिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ही आपके पास नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अभी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। अगर वो आपसे कहता है कि व्हिच मॉलिक्यूल हैव लाइक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, ये नहीं पूछा कि पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो आपको पिक करना आना चाहिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे जाके आपको ओवरऑल पोलैरिटी के बारे में भी आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन दोबारा से यहाँ भी पता चल जाएगा। नाउ बिफोर वी फर्दर मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की तरफ आ गए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग का। This is a type of a covalent bond in which both the bonded pair of electron is being provided by a single atom। इसकी दो conditions हैं, वो एग्जाम में आपसे कंडीशन पूछ सकता है। These are the two conditions of coordinate covalent bond। एक एटम के पास empty orbital होने चाहिए, दूसरे एटम के पास lone pair of electron होना चाहिए। ठीक है, जैसे अमोनिया और H पॉजिटिव बहुत कॉमन है बेटा कि वो अमोनियम आयन की आपसे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, या अमोनियम आयन के बारे में आपसे पूछ सकता है। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो आपको NH4 पॉजिटिव की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए और लाइन फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, Al2Cl6। ठीक है, और ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है NH3 और BF3। बोरॉन इज ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो जब अमोनिया के साथ मिक्स होता है तो अमोनिया का लोन पेयर इसके साथ शेयर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। प्रीवियस ईयर्स में एक दफा उन्होंने इस स्टेटमेंट की बेस पे क्वेश्चन पूछा था कि BF3 and NH3 reacts together to form a white solid। Write down they explain the formation of this white solid in terms of bonding। तो आपको ये बात एक्सप्लेन करनी थी कि BF3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, NH3 के पास लोन पेयर है, so the nitrogen will make a coordinate covalent bond with boron and a white solid is formed। और ये डायग्राम आपको बनानी थी। ठीक है, वेरी कॉमन, और आपको याद होगा कि कई बार इन्होंने जो है वो Al2 Cl6 के बारे में आपसे पूछा है, which is the formation of a dimer। डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से विद ऑल द करेक्ट लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। देखो जो एक AlCl3 है, दूसरा AlCl3 है, तो लेफ्ट वाले AlCl3 का कोई एक क्लोरीन राइट वाले एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो क्लोरीन बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके जो लोन पेयर बचेंगे बेटा वो अब 3 नहीं होंगे, वो कितने होंगे?
वो 2 लोन पेयर होंगे। तो इतना अच्छा साइन बना है, सही है, वो 2 लोन पेयर होंगे, क्लियर। और बाकी सारे क्लोरीन के ऊपर आपके पास 3 लोन। इन अ सिमिलर वे ये वाला जो क्लोरीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, इस क्लोरीन के भी आपको बाकी के 2 लोन पेयर बनाने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी मैंने इस क्लोरीन के भी 2 लोन पेयर बनाए हैं, बाकी सब पे 3 बनाए, और इस क्लोरीन के भी मैंने 2 लोन पेयर बनाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी से पॉइंट है। अगर आप इन की पॉइंट्स को ख्याल रखोगे बेटा तो एग्जाम में वो कॉमन एरर नहीं होंगे जो नॉर्मली एग्जाम में हो जाते हैं, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता ही मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में है, चाहे वो कार्बन के मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, चाहे वो किसी के भी हो। If you have a multiple covalent bond, यानी double या triple covalent bond present between two atoms, then there is a concept of a pi bonding, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि this bond form between two atom, ठीक है, the first bond of a multiple covalent bond, यानी अगर आपको उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो पहला वो बॉन्ड जो बनाएगा दैट्स बेसिकली द सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे बिटवीन टू एटम्स टू मेक अ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड आर दी पाई बॉन्ड। अब कॉन्सेप्ट ये बात याद रखना बेटा कि अगर आपके पास नाइट्रोजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, विद एच, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही एग्जांपल के लिए, वैसे बॉन्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही लेकिन फिर भी, सो सिर्फ ये वाले सिग्मा बॉन्ड होगा और ये वाला पाई बॉन्ड होगा। बाकी जो दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सिर्फ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में आता है, ठीक है, बिटवीन टू एटम, यानी जहां डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनमें से एक पाई होगा, जहां ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनमें से एक सिग्मा, एंड यू हैव 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको समझ आ रहा है कि हाउ मेनी सिग्मा, ये भी क्लियरली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इन एनी एटम हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट you have present in a molecule, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कॉमनली ये आपको सारी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी आनी चाहिए, एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बहुत सारी हमने इस कोर्स में आगे कर चुके हैं, शायद SO2 बल्कि तकरीबन सारी कर चुके हैं। कुछ अगर कोई मिसिंग हो तो वो आप सर्च करके बुक से या नेट से सर्च करके अपने पास बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब तक हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग पढ़ा, और उसके अलावा ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग की कॉमन एग्जांपल और उसकी कंडीशन, एक एटम के पास लोन पेयर है तो दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो नहीं। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि कॉन्सेप्ट यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ यू लुक एट दिस, अगर आप इसे देखो बेटा तो देखें, फॉस्फोरस मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, एक PCl3 बना रहा है in which you have 3 bond pair and 1 lone pair, एक PCl5 बना रहा है ना सिमिलर वे, सल्फर मेकिंग 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो वही सल्फर है वही फ्लोरीन है लेकिन 3 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बन रहे हैं, SF2 SF4 SF6। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉक्स डायग्राम, यानी वो जो हम एरोस वाली डायग्राम बनाते हैं, हम बनाते हैं, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे टर्म एक जैसे हैं, लोअर एनर्जी और ग्राउंड स्टेट का मतलब एक ही होता है। एग्जाम में चाहे वो आपसे बोले कि राइट डाउन the ground state electronic configuration of sodium, तो आपने 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखा, ठीक है। वो अगर आपसे बोलता है कि राइट डाउन the lower energy इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भी आपने सेम लिखनी है क्योंकि हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बात याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं ये कैसे पता चलता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट लाइन पे सिर्फ फोकस कीजिएगा विच इज नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब अगर हम बॉक्स डायग्राम बनाएंगे
तो आप देखेंगे 2s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज द लास्ट शेल की बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई नाइट्रोजन इज मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एक हाइड्रोजन यहाँ के पेयर अप हो जाता है और ये 2s वाला लोन पेयर बनता है। दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टाइप मॉलिक्यूल। अब NH3 हो, NCl3 हो, कोई भी हो, ठीक है, क्लियर। तो दैट्स बेसिकली अमोनिया। ये अमोनिया ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फास्फोरस बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज नाइट्रोजन, उसी ग्रुप में नाइट्रोजन से नीचे होता है। फर्क कितना है? फर्क सिर्फ ये है कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल की सेम होती है, 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बट थर्ड शेल में होते हैं, ठीक है ना। और थर्ड शेल में आपके पास जो है वो 3d ऑर्बिटल एम्प्टी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के केस में देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट। फॉर एक्साइटेड स्टेट 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आउटर मोस्ट शेल में आपके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मिनिमम, और आउटर मोस्ट शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नाइट्रोजन में यू हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं जाके अनपेयर सेम शेल में नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए ये दोनों कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक्साइटेड स्टेट इज द लाइक द शिफ्टिंग ऑफ अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल विद इन अ शेल। द शिफ्टिंग of a paired electron into an empty orbital within a shell, ठीक है। कभी भी एक्साइटेड स्टेट बिटवीन द शेल नहीं होती, विद इन अ शेल अगर आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और एम्प्टी है। अब जितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 बाय 1 उतनी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हो सकती है। फास्फोरस का की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गौर से देखो बेटा। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको नजर आ रहा है कि you have 1 pair of electron, 3 unpaired electron. So ground state में अगर फास्फोरस बॉन्डिंग करेगा it is going to be the same bonding as nitrogen. 3 covalent bond, 1 lone pair of electron. जैसे NH3 बनना था वैसे PCl3 बन गया। तो PCl3 की फॉर्मेशन तो अमोनिया वाली है, बहुत आसान है। लेकिन अब फास्फोरस के बाद दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट के बाद जाए एक बॉन्ड एक कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में भी पॉसिबल है। 3s से एक इलेक्ट्रॉन उसके 3d में चला जाएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन सॉरी जो इसके पास हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाउ, ठीक है। तो इसलिए इसमें 5 पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज है और PCl5 बनेगा 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर्स के साथ, ठीक है। अगर आपको एक स्टेप अभी आगे चलते हैं, वैसे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लेकिन हम आपको चूंकि बताइए, अगर मैं आपसे वैसे ही जर्नल पूछ लूं कि भाई PCl5 में विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलेंगे sp3d। s कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d। जितने जो ऑर्बिटल और जिस क्वांटिटी में मिक्स होते हैं आप उन हाइब्रिडाइजेशन को वही नाम देते हैं। अगर एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। जी हाँ, चलो फिर आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। sp3 PCl5 ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, देखा स्क्रीनशॉट, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है इसका, हमने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन वेल इलिबरेटेड है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाइट्रोजन कैन मेक ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट फास्फोरस कैन मेक 5 कोवेलेंट बॉन्ड विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। आंसर पढ़िए एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके बेटा, आई एम बैक। सही है जी। तो आप होपफुली कि आपको ये आंसर इसका याद होगा, ठीक है।
एक्साइटेड स्टेट, ये सारी चीजें हैं। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के और सल्फर के केस में भी सेम होता है। सल्फर SF2 बनाता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वैसे फाइल अब मेरी खराबी हो गई है, ठीक है। दिस इज बेसिकली ground state. This is first excited state. And this is second excited state. ठीक है? Why? Because sulfur is 16. Next explain तो नहीं किया? नहीं. Sulfur is 16, so it has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ठीक है? So if I draw this outermost shell की box diagram, so you have one, ठीक है, ठीक है, this is 3s, this is 3p, ठीक है। So you have two pair of electron and lot of empty orbital, d orbital 5 empty है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला उठ के जाएगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, SF4 बन जाएगा एंड दिस वन 3s वाला लोन पेयर रहेगा, क्लियर। और फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये वाला भी उठ के चला जाएगा N0 लोन पेयर, ठीक है, क्लियर। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है बेटा। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो एग्जांपल आपको दी जा रही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम हाइड्रोजन की पूछी जा रही है, तो यू नो दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का किस शेल में है बेटा? हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है। तो SL ओवरलैपिंग में आप दो स्पेयर को ओवरलैप कर रखा है। HCl के केस में हाइड्रोजन का S में है और क्लोरीन का P में है, तो sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ये होगी। Cl2 के केस में pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट कौन सा होगा बाय पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ठीक है बेटा, सो आगे चलते हैं। अब बॉन्डिंग इन कार्बन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और ये आप ऑर्गेनिक के साथ लिंकअप था। कार्बन पूरी कहानी इस मैंने आपको सुनाई थी ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आए। स्टोरी ये थी कि हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं कर सकता बिकॉज इन अ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन हैव टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन, तो उसके बाद उसको दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए, विच इज नॉट द केस, ठीक है। तो कार्बन हमेशा बॉन्डिंग करता है एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में मसला ये है कि आपके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s में है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो ये सारे इक्विवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में अपने ये सारे ऑर्बिटल्स को मिक्सअप कर देता है, ठीक है। मिक्सअप करने के बाद बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करता है, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हिच इज रिटन विद दिस ग्रीन कलर। The mix of atomic orbital in excited state to form bonding orbital of the same energy, ठीक है ना। यानी एक्साइटेड स्टेट में जो भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें मिक्सअप करके इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना, ठीक है, क्लियर है। तो अब याद रखिएगा कि कार्बन जब भी एल्केन फॉर्म करता है, इट्स ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब भी कार्बन को सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं
और कोई भी जो है वो कार्बन को पाई बॉन्ड नहीं बनाना होता, तो द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ये होती है जो मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एल्केन की बनानी आनी चाहिए, चाहे वो CH4 हो चाहे वो C2H6 हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यस, इन केस ऑफ अ पाई बॉन्डिंग, ये बात कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पाई बॉन्डिंग के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल यूज होता है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नॉर्मल डम्बेल शेप में होता है जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है, देखिए दिस इज बेसिकली दी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। आपको लग रहा है सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं दो पी ऑर्बिटल। और पाई बॉन्डिंग हमेशा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो जो पाई बॉन्डिंग में ऑर्बिटल यूज होगा, लास्ट वाला ही होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि उसे पाई बॉन्ड बनाना है तो वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से बनता है। लेट्स सपोज कार्बन को एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन अपने एक पी ऑर्बिटल को बचा लेगा, एक एस और दो पी ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। और जो ब्लैक से रिप्रेजेंट हुआ है, दिस इज बेसिकली वन डम्बेल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो द प्लेन, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ पाई बॉन्ड। ठीक है, और फिर कार्बन हाइड्रोजन के नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इन एल्कीन, कार्बन इज मेकिंग each carbon atom is making 3 sigma bond and 1 pi bond. sigma bond sp2 से बन रहा है, कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मैंने शो की है। कार्बन हाइड्रोजन में s और sp2 है, और पाई बॉन्ड बन रहा है pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। वहां आप sp2 नहीं लिख सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, that the pi bond is formed by the orbital overlapping of two unhybridized p orbital। ये डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए। अगर वो बोलता है ड्रॉ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ अ पाई बॉन्ड ओनली, तो आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर वो आपसे कहता है कि शो द पाई बॉन्ड, सिर्फ ये लिखता है शो द पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ पाई बॉन्ड, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। अगर वो कहता है शो द कंप्लीट, बहुत रेयर है, नहीं पूछा, कंप्लीट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो टॉप वाली आ गई, सही है। लेकिन सिर्फ पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ये वाली होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड शो करना है तो ये वाली होगी। बिफोर आई मूविंग टूवर्ड्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो लेट आंसर दिस वन। देखो, जब दो एटम, लेट्स टेक ए कार्बन एग्जांपल, कार्बन को कार्बन के दरमियान सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाने होते हैं, ठीक है, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, याद है ना ये बात? ठीक है, कार्बन को एक डबल बॉन्ड बनाना होता है और दो सिंगल बॉन्ड बनाने होते हैं, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन को इफ इट हैज टू मेक थ्री कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो इसके पास ये हमेशा sp हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp2 और sp3 तीनों चीजें याद रहेंगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एल्काइन की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर एल्काइन में बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ईच कार्बन एटम इज मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ऐसा ही है ना, 2 सिग्मा बना रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप एक कार्बन बनाएंगे और सबसे पहले इनके सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कार्बन, कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, है ना, कार्बन का पी हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये तो आपने सिग्मा बॉन्ड शो कर दिए सारे। ठीक है, अब ईच कार्बन एटम हैज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास क्या है? 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल आप यहां ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस में करके इसको ड्रॉ कर, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एक है डम्बेल शेप में।
ये एक पाई बॉन्ड बना आपके पास, ठीक है। फिर आप यहीं पर एक और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड इन दोनों की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से दिखाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, आप उन दोनों की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करेंगे कि अब ये इस तरह से और एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि ये कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है। पहले एक ऑर्बिटल यहां से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये एक आपके पास पाई बॉन्ड बनता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और यहाँ पे बनता है, ठीक है, इसके ऊपर, यानी ये इस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इन अ सिमिलर वे अगर वो आपसे बोलता है कि भाई नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करें, तो आप वही और सेम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आप दो ऑर्बिटल दिखा देंगे पी ऑर्बिटल ओवरलैप होते हुए, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा ताकि वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शो करना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप अगर ये कॉन्सेप्ट भी शो कर देंगे कि आपने ईच नाइट्रोजन पे एक एक ऑर्बिटल बनाया है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, so this is basically the way you represent the orbital overlapping of नाइट्रोजन, ठीक है। एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नॉर्मल पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। नेट पे सर्च कर लीजिएगा, क्लियर पिक्चर आ जाएगी आपके पास, आपके लिए बनाना और आसान हो जाएगा, आप उसे अच्छे तरीके से उसी तरह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिग्मा एंड पाई। अब आखिरी आखिरी तो नहीं, लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, भाई शेप ऑफ मॉलिक्यूल कोई इतना मुश्किल नहीं है ना, आपको इसको याद करने में कोई मुश्किल होनी चाहिए। कुछ कॉमन केसेस हैं, बस आप उन केसेस को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसका नाम BSEPR थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इजी, that this is the force of repulsion present between the pairs of electron in any covalent compound. अब वो force of repulsion different तरह की हो सकती है, क्योंकि different type of pairs of electron you have electron pair could be present as a bond pair of electron, or it could be present as a lone pair of electron. तो क्या पॉसिबिलिटीज है? पॉसिबिलिटी ये है कि रिपल्शन होगी बिटवीन टू लोन पेयर, जहां टू बॉन्ड पेयर जहां वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, बिटवीन टू लोन पेयर जहां वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, बिटवीन अ बॉन्ड पेयर एंड अ लोन पेयर जहां एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ एक दूसरे को फेस कर रहा होगा। ये एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल बना के मैंने आपको तीनों टाइप की रिपल्सिव फोर्सेस बता दी हैं। जो फोर्स नंबर 3 मार्क हुई भी है, दिस इज बेसिकली द रिपल्शन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। फोर्स नंबर 1 इज द रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर, एंड फोर्स नंबर 2 जो रीजन 2 है, दिस द एरिया वेयर यू हैव अ रिपल्शन बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंस शेल रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि देखो लोन पेयर आउटर मोस्ट शेल के वो फारिग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो भाई जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं तो उनका एक ही काम है, वो काम क्या है? रिपल्शन प्रोवाइड करना। तो लोन पेयर जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर दोनों ही लोन पेयर्स हैं जिनके दरमियान रिपल्शन है तो वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और मिनिमम क्या होगी? जहां कोई भी लोन पेयर नहीं है बट बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर वो आपको डिफाइन करने को बोलता है बेटा, तो आप बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू BESPR थ्योरी द रिपल्शन बिटवीन टू lone pair is greater than the repulsion between a lone pair and a bond pair, which is greater than the repulsion between two bond pairs, ठीक है। अगर वो डिफाइन करने को बोलता है तो क्या डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू BSPR theory the repulsion between two lone pair is greater than the repulsion between a lone pair and a bond pair, which is greater than the repulsion between two bond pairs of electron, ठीक है। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री चेंज होती है, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके पास अगर कोई लोन पेयर आ जाता है तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल और शेप चेंज हो जाती है,
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने। इसीलिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड basically depends on the electron geometry or the types of electron present around the central atom. अगर उसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप कुछ और होगी, टू बॉन्ड पेयर ही हैं लेकिन एक लोन पेयर भी आ गया तो शेप कुछ और होगी, टू लोन पेयर आ गए तो शेप चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ ये कि शेप, द एंगल बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड विच इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, उससे उसके बाद हम सिमेट्रिकल शेप्स पहले डिफाइन की थी। तो 4 सिमेट्रिकल शेप आपको याद होनी चाहिए। सिमेट्रिकल शेप का मतलब होता है द शेप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इन विच देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो मैंने पहले सिंपल से केस से आपको कुछ चीजें याद करवाई थी, व्हिच इज बेसिकली द केस इन विच यू हैव नो लोन पेयर प्रेजेंट। सो बेसिकली टू बॉन्ड पेयर के साथ 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कैसे पता चलेगा? अब क्या आपको ये सारी एग्जाम्पल याद करनी पड़ेंगी? नहीं भाई, आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा, सेंट्रल एटम पिक करना। ठीक है, जैसे बोरॉन सेंट्रल एटम है। अब आप देखो बोरॉन किस ग्रुप का है, तो आपको पता चलेगा कि बोरॉन इस ग्रुप 3 में है पीरियोडिक टेबल के। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। फिर आप देखो बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो आपने देखा BF3 में बोरॉन इज मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, है ना? ऐसे ही ना। सो इट मींस दैट BF3 हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। जब भी ये ऐसा केस होगा, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर होगी, बॉन्ड एंगल 180 के बजाय 120 डिग्री का होगा। 180 लीनियर में था ना। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास शेप टेट्राहेड्रल होगी, 109.5 का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में शेप आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल 90 का होगा इन दोनों के दरमियान, और ट्राइगोनल एरिया में 120 का होगा। 4 तक तो बहुत आसान, 3 मतलब थर्ड केस 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक तो कॉमनली सबको याद होता है। 5 को और 6 को, 6 तो बहुत ही आसान है, ऑक्टाहेड्रल, ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, SF6 इज एन एग्जांपल। ये 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस आप इन दो एग्जांपल्स को और इतना ही केस याद कर लें तो इट्स मोर देन एनफ। ठीक है, हाँ ये कर सकता है कि वो फॉस्फोरस के बजाय फॉस्फोरस के नीचे वाला कोई एलिमेंट ले ले सेम ग्रुप का, तो PCl5 के बजाय वो फॉस्फोरस के नीचे वाला कोई एलिमेंट ले लेगा। तो आप समझ जाना चाहिए कि भाई ये वही केस है जो फॉस्फोरस का केस है। ठीक है, जैसे वो NH3 के बजाय PH3 पूछ सकता है, NH3 के बजाय NCl3 पूछ सकता है। इट्स गोइंग टू बी द सेम केस। ठीक है, क्लियर? तो ये सिमेट्रिकल केस। नॉन सिमेट्रिकल केस में क्या होता है कि सेंट्रल आइटम आ जाता है आपके, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, एक तो अगर आप 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो पहला केस तो ये है जो कि सिमेट्रिकल केस है कि दोनों बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो 180 डिग्री 0 लीनियर शेप होगी। अगर एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो लीनियर शेप होगी, कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड और बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर? तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। Okay, second case, 3 pairs of electron, 3 bond pair, 0 lone pair, trigonal planar होगा। 2 bond pair, 1 lone pair के साथ bond angle 120 से लेस होगा, रेंज गिवन होगी, प्रेडिक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मली 17 से 118 का कोई बॉन्ड एंगल पिक कर दीजिएगा। 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ लीनियर शेप होगी, कोई बॉन्ड एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, क्योंकि इसकी एग्जांपल बहुत कॉमन है। जैसे CH4 is an example of 4 bond pair, 0 lone pair, 3 bond pair, 1 lone pair के साथ अमोनिया एग्जाम्पल है। पिरामिडल शेप हो जाती है बेटा टेट्राहेड्रल से, बॉन्ड एंगल 107 पे पहुंच जाता है। इसको आप अच्छे अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी तरह से 2 पेयर ऑफ 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, वाटर इज एन एग्जाम्पल। शेप आपके पास 104.5 एंगल 104.5 हो जाता है, बी शेप या बेंड शेप हो जाती है, नॉन लीनियर। ठीक है, HCl के केस में आपके पास नॉन लीनियर सॉरी लीनियर शेप होती है, कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं व्हाइल प्रिडिक्टिंग द शेप। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपके पास शेप लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 का होगा, क्योंकि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एक ही ऑक्सीजन से बन रहे हैं, तो शेप में ये सिंगल ही कंसिडर किए जाते हैं। तो दिस इज द सेम केस एज 2 बॉन्ड पेयर एंड 0
लोन पेयर। ठीक है बच्चे, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक एक पेज पे आप समरी बना लीजिए, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन आई रिकमेंड कि अब जब आप रिवीजन करें ना तो कुछ कीज अपने खुद ही बना लिया करें। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को रिकमेंड नहीं करता कि आपको टीचर्स की तरफ से या टीचर की तरफ से पूरे चैप्टर की एक पेज पे या एक छोटी सी चिट पे कोई समरी या चीट नोट्स जिसे कहते हैं वो मिल जाएं और आप उन्हें याद कर लें। इट आई थिंक इट्स मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना, जितना आप मतलब पेज पे मटेरियल की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इट स्टार्ट लुकिंग मोर डिफिकल्ट, उसको याद रखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, पेज की एक सिंप्लिसिटी, जितनी ज्यादा पेज या नोट्स आपके सिंपल होंगे और उतना ज्यादा आपके पास जो है यानी जितना उस पेज पे कंटेंट कम होगा उतना उसको मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस तो बढ़ जाएंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर मेमोरी आपके लिए उस पर विजुअलाइज करना और रखना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए आप देखें मैं पेज पे बहुत ज्यादा नहीं लिखता, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ कि पेज पे कुछ ऐसा हो कि कम से कम एक विजुअल इम्पैक्ट जरूर आए इसका। ठीक है, अच्छा, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड याद रखिएगा कि दिस इज बेसिकली द लास्ट फ्यू पार्ट बिफोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के लिए आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए और शेप नॉन सिमेट्रिकल होनी चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल शेप दो रीजन की वजह से हो सकती है, या तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जैसे अमोनिया की एग्जांपल है। अगर लोन पेयर नहीं है तो भी शेप नॉन सिमेट्रिकल हो सकती है अगर if you have atoms with different sizes are attached। ठीक है, जैसे CH3Cl की एग्जांपल राइट साइड पे लिखी हुई है, यू कैन सी 3 हाइड्रो, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, इट्स अ सेंट्रल एटम बट इट हैज 3 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन प्रेजेंट। और ये सारी चीजें याद रखिएगा, प्रेडिक्टिंग द शेप बॉन्ड पेयर लोन पेयर या सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल में हम सिर्फ सेंट्रल एटम को कंसीडर करते हैं, द वन व्हिच इज लेस इन नंबर, है ना। CH3Cl में आप कार्बन देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो चाहे कुछ भी हो जाए, कार्बन ही सेंट्रल एटम होता है हमेशा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन इज ऑलवेज द सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। अब आपके पास जितना ज्यादा सिमेट्रिकल शेप नॉन सिमेट्रिकल होगी उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा। आपको याद है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of these molecule have the largest overall dipole, बहुत कॉमन है, हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया है। तो आप देखते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में एक बहुत क्लियरली एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव आ रहा होता है, हम कहते हैं दिस मॉलिक्यूल हैव द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कहाँ है एग्जाम्पल, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज द शेप इज लीनियर, symmetrical shape है, so there is no net overall dipole get cancelled out। ठीक है, so that's why this is basically a non-polar molecule। इसका डायपोल मोमेंट कम होता है या जीरो होता है तकरीबन। ठीक है, क्लियर। so ये बहुत जरूरी है कि आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बाद पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लास्ट पार्ट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक बात याद रखिएगा कि in all organic in all simple covalent compound, all the physical properties like the melting point, boiling point, it's all depends on the extent of intermolecular or the type of intermolecular forces। Intermolecular forces are force of attraction present between the molecules। ठीक है, between the molecule, और उसी पे सारा देखो, मॉलिक्यूल जितने सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल जितने आपके करीब करीब होंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर। सो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप और उसका एक्सटेंट पहचानना जरूरी है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस इन जनरल, जिनको हम डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस जो से पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is present in a molecule that in which the hydrogen is bonded to directly to नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे पहले डिस्पर्जन फोर्सेस की तरफ जाते हैं, जिसको हम लंडन फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। तो आपके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा डिस्पर्जन फोर्सेस होगी। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होंगे? जब एमआर ज्यादा होगा, ठीक है, और एमआर ज्यादा होगा तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन dispersion forces are present in all molecule. These are the weakest intermolecular forces and they are only important when there is no other force of attraction present. यानी अगर आपके पास polar molecule है which has a dipole forces present, तो उसमें भी dispersion forces होंगी, लेकिन they are not important, वो important नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, क्लियर? तो ये डिस्पर्जन फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, इवन नोबल गैसेस हैव डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट। डिस्पर्जन नॉन पोलर जहां अब आप पोलैरिटी, नॉन पोलर सब कुछ पढ़कर आए हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस ही प्रेजेंट होती है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल में ऑल हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ऑल हाइड्रोकार्बन्स हो गए आपके पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हो गए। तो हेलोजन is the most common example. Going down the group of halogen, as halogens are diatomic, simple, non-polar covalent compound. So going down the group, as the MR increases, extent of dispersion forces increases, their boiling point, melting point increases, even their physical state changes. So fluorine, chlorine are gases, bromine is liquid and iodine is solid. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसी का आंसर यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास नोट्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्सेस ही होती हैं, बट दे आर ओनली प्रेजेंट ड्यू टू अ सर्टेन केमिकल एटमॉस्फेयर। यानी आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट की वजह से पोलर बिहेव करने लगता है। जैसे आपके पास ब्रोमीन है विच इज अ टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब आप उसे एल्कीन में डालते हैं तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एंड दैट्स बेसिकली कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। तो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन could be present, or induced dipole forces could be present in any non-polar molecule in a in a certain chemical atmosphere. ठीक है, तो ये नोट से आपको इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, क्लियर? डायपोल के लिए आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, ऑल पोलर मॉलिक्यूल जिनमें पोलैरिटी कैंसिल आउट भी ना हो, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो और शेप भी नॉन सिमेट्रिकल हो, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऑल पोलर मॉलिक्यूल हैव डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट। डायपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू dispersion forces. That's why all polar molecules have a higher boiling point and melting point. ठीक है, वैन डर वाल्स सबसे वीकेस्ट होती हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस जिसे हम कहते हैं सबसे वीकेस्ट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डायपोल फोर्सेस उनसे स्ट्रॉन्गर होते हैं। दैट्स व्हाई पोलर मॉलिक्यूल हैव अ हायर बॉइलिंग। वो आपसे पूछेगा पोलर मॉलिक्यूल में हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो आप बोलेंगे बिकॉज दे हैव अ डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट व्हिच आर एंड दीस फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रिसाइजली है वो सारे पोलर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, NOF का बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो कॉमन एग्जांपल है वाटर, ठीक है, अमोनिया, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट अपने सारे हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑल अल्कोहल, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन सब के अंदर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डेड मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली the force of attraction present between a lone pair of one atom and the partial positive hydrogen of one molecule and the partial positive hydrogen of the other molecule. जब भी ड्रॉ करने के लिए आएगी तो याद रखिएगा कि लोन पेयर से ही आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया में सेंट्रल आइटम पे एक लोन पेयर है, तो आपने एक मॉलिक्यूल के लोन पेयर से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करनी है। इन वाटर you have two lone pair present on oxygen, तो per molecule 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा जब भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करनी होगी बेटा, लोन पेयर पार्शियल चार्जेस अच्छे तरीके से मेंशन करने पड़ेंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कॉमनली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि या तो अमोनिया, अल्कोहल या वाटर, अमोनिया,
इथेनॉल और वाटर, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके P2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, दो तो यहाँ पर स्क्रीन पे है, अल्कोहल ऑर्गेनिक में मैंने आपको करवाया था इथेनॉल की। तो ये दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अमोनिया और वाटर से रिलेटेड मैं क्या बात कर रहा था? यस, अमोनिया और वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आता है बहुत कॉमन, कि अमोनिया एंड वाटर बोथ आर पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल with almost a similar MR, but ammonia is a gas and water is liquid. तो आप बोलेंगे in water the oxygen have two lone pair of electrons present, so per molecule two hydrogen bond are formed. So the extent of hydrogen bonding is double in water as compared to ammonia. That's why water is liquid and ammonia is gas. ठीक है, क्लियर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल और वाटर की आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, हमने ऑर्गेनिक में भी इसे डिस्कस किया था। तो दिस इज अ वेरी यू कैन से लेंथी चैप्टर। there is a possibility that a question is there in P2 as well. कोशिश करें कि जितना जिस हद तक कर सकते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से पूरे चैप्टर को आप डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। एज आई सेड, मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है आपसे कि आप सिमेट्रिकल में तो आप 2, 3, 4, 5, 6 तीनों बॉन्ड पेयर याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। नॉन सिमेट्रिकल शेप में सिर्फ आप 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नॉन सिमेट्रिकल शेप, यानी केस ऑफ अमोनिया और अमोनिया टाइप मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, द केस ऑफ वाटर और वाटर टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, इनकी शेप और बॉन्ड एंगल याद कर लें। अब शेप और बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत ज़हन में होगा तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। अगर आपको बेसिक इनके याद हैं तो इनसे रिलेटेड मॉलिक्यूल के भी आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। if you have any question you can ask and I'll continue with the states of matter in next class.